Good afternoon, friends, and welcome to this joint press conference by Honorable External Affairs Minister and Honorable Minister of State Independent Charge Ayush on the International Day of Yoga. We will begin the program with a very short film on the International Day of Yoga. On 27 September 2014, India's Prime Minister Narendra Modi proposed an On 27 September 2014, India's Prime Minister Narendra Modi proposed an International Day of Yoga at the United Nations General Assembly. Today, I would like to draw your attention to another subject. When we talk about climate change, when we talk about holistic healthcare, when we talk about unity with nature, when we talk about getting back to basics, I would like to say something special about this subject. Yoga is our ancient, traditional, and invaluable gift. Yoga symbolizes the balance of body and mind, thought and action, achievement and self-control, and the coming together of human beings and nature. Yoga aims at transformation of our lifestyle, and its awareness can help us in our struggle against climate change. Yoga means to us unity and love. Start practice yoga and I feel your life become more colorful and meaningful. In India, I started to have a glimpse of the real yoga, that union of ourselves to the divine. The practice of yoga brings about balance, well-being, happiness, and the freedom to live life fully. As more and more people take up yoga around the world today, we may actually see the beginning of a global shift in consciousness, leading to a more balanced and harmonious planet. Yoga practitioners become more conscious consumers, better human beings, more environmentally conscious, and good leaders. This is the power of yoga, and it can only be good for the world. Let us work towards making a beginning in this direction with an International Day of Yoga. On 11th December 2014, the United Nations passed a resolution making 21st June the International Day of Yoga. 177 nations co-sponsored the resolution, a record in UN history. May I now invite Honorable External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj and Honorable Minister of State for Ayush, Shri Shripad Naik, to come to the dais, please. May I also invite Dr. H.R. Nagendra, the Chairman of the committee constituted by Ayush
and Secretary Ayush, Shri Nilanjan Sanyal, to take their places on the dais. We will begin with an opening statement by the Honorable External Affairs Minister. She will be speaking in Hindi, but simultaneous interpretation has been provided, so those of you who need headsets, please put them on. पिछले 10 दिन के भीतर ये हम लोगों की दूसरी मुलाकात है। पहले दिन पूरे विदेश मंत्रालय की उपलब्धियों पर, विदेश नीति पर हमने चर्चा की, लेकिन आज की हमारी ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ही सीमित रहेगी। मेरे साथ हैं आयुष विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाई श्रीपद नायक, मेरे बाईं ओर हैं एस व्यास यूनिवर्सिटी के चांसलर और हमारी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र जी और आयुष के सेक्रेटरी श्री सान्याल जी। आपको याद होगा पिछली प्रेस वार्ता में मैंने एक वाक्य कहा था कि मात्र 12 महीनों में भारत विश्व के उस शिखर पर पहुंचा है जहां भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित होना उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी आपने ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हुई उसमें देखा कि 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक इच्छा प्रकट की, प्रस्ताव नहीं रखा, एक इच्छा प्रकट की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि योग मानव को प्रकृति से जोड़ने का भी एक माध्यम है और जीव को ब्रह्म से जोड़ने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए उन्होंने एक आह्वान किया दुनिया का कि आइए योग के साथ आगे बढ़ें और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करें। दूसरी तारीख भी आपने देखी, 11 दिसंबर को 177 देशों के को स्पॉन्सरशिप के साथ, यानी सह प्रायोजक बने 177 देश, उसके साथ वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, निर्विरोध पारित हुआ। अगर हम ये दिनों का अंतर गिने तो कुल 75 दिन बनते हैं। 27 सितंबर को पीएम बोले और 11 दिसंबर को प्रस्ताव पारित हो गया। मात्र 75 दिन में 177 देशों के सह प्रायोजकत्व में ये प्रस्ताव पारित हुआ। प्रेजेंटेशन में कहा गया था ये एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कैसे है? इससे पहले का यूएन का रिकॉर्ड नेल्सन मंडेला जी के प्रस्ताव पर 168 देशों का को स्पॉन्सरशिप था। उस रिकॉर्ड को तोड़कर 177 देशों ने इसमें को स्पॉन्सरशिप की और जैसे मैंने कहा निर्विरोध ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो 75 दिन और 177 देश, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता है। अब चूंकि ये भारत की पहल पर हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत इसको बहुत भव्यता से मनाए और बहुत व्यापक स्तर पर मनाए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग 2 विभागों को जिम्मेदारी दी गई। एमईए विदेश मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई कि वो विदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करें और आयुष मंत्रालय को प्रमुख रूप से जिम्मेदारी दी गई कि आप देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करें और इसके साथ इन्हें सहयोगी भूमिका के तौर पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, युवा खेल के मंत्रालय और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय को इनके सहयोगी के रूप में रखा गया। मुझे आज आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये जो 177 देश हैं, क्योंकि बहुत बार ये विषय आ जाता है कि योग तो एक धर्म विशेष के साथ जुड़ा हुआ कार्य है,
मैं बताना चाहूंगी कि इन 177 देशों में 47 देश ऐसे हैं जो OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सदस्य हैं। 177 देशों में 47 मुस्लिम देश शामिल हैं जिन्होंने को स्पॉन्सरशिप की। विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो हमारे सह प्रायोजक बने, जो हमारे को स्पॉन्सरर बने, हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम बनाने की बात की तो एक विचार ये भी मन में आया कि हम पूरे विश्व में एक ही समय चुने और एक ही समय पे, जैसे अर्थ आवर में होता है कि अगर 8 बजे तो किसी भी देश में जब भी 8 बजते हैं उस समय ये कार्यक्रम किया जाए। लेकिन मुस्लिम देशों से सुझाव आया कि रमजान शुरू हो जाएंगे, आप हमें रोजा इफ्तार के बाद इसको करने की इजाजत दीजिए। तो हम लोगों ने कार्यक्रम में ये रखा कि बिल्कुल समय की कोई पाबंदी नहीं, खुला रखा, जिस देश को जब सुविधा है वो तय करे। तो विशेष तौर पर उन्होंने हमसे कहा कि हम इसको बहुत भव्यता से करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल इस सुझाव को स्वीकार करते हुए, जो पहले हम एक ही समय पर सब देशों को कह रहे थे कि आप करिए, उसकी बजाय हम लोगों ने तय किया कि अपनी अपनी सुविधा से सभी देश करें। मुझे दूसरी बात आपको बताते हुए खुशी है कि विश्व में कुल 193 देश हैं। भारत समेत 192 देशों में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ यमन को छोड़कर। और यमन को भी हमने इसलिए छोड़ा कि वहां हमारी एम्बेसी बंद होकर के जिबूती में शिफ्ट हो गई है। यमन के जो हालात हैं, वैसे हालात और देशों में भी हैं, लेकिन सब जगह हम कर रहे हैं। यमन में ना करने का एकमात्र कारण है कि वहां हमारी एम्बेसी नहीं है। तो 192 देशों में विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कार्यक्रम किया जाएगा। और हमारे मिशन केवल 121 हैं। बाकी ऐसे भी देश इसमें शामिल हैं जहां मिशन नहीं है। उसके बावजूद भी इसको विश्व स्तरीय सही मायने में कहने के लिए हम उन जगह भी कर रहे हैं जहां हमारे मिशन नहीं है। और मैं यहां विशेष तौर पर आभार करना चाहूंगी उन योग गुरुओं का जिनके संस्थान हमें सहयोग दे रहे हैं इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि हम अपनी ओर से तो बहुत कम योग शिक्षक वहां भेज पाए, 30 या 31 भेज पाए, लेकिन इनके केंद्र योग गुरुओं के बहुत बहुत जगह हैं, किसी के 121 जगह, किसी के 151 जगह। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो अपने शिक्षक भेजेंगे और वहां लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन आप अगर कहती हैं कि सब जगह होगा तो ये सब जगह होगा। तो मैं विशेष रूप से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन योग गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में हमारा साथ दिया है। विदेश के बाद देश का आयोजन, जैसे मैंने कहा था कि आयुष मंत्रालय को दिया गया, बाकी कुछ मंत्रालय इनके साथ काम कर रहे हैं। उसमें कुछ बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने सोचे हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो आयुष कर रहा है वो राजपथ पर होगा। वहां 35,000 लोग एक साथ योग करेंगे और ये सीमा हमें स्थान के कारण पड़ गई। हम यहाँ 1 लाख लोग भी जुटाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि स्थान पर्याप्त नहीं था, आसन तीनों तरह के हो रहे हैं, खड़े होकर भी, बैठकर भी और लेटकर भी। तो लेटकर जो आसन होंगे उसके लिए जितने समय चाहिए, तो जितने मैट्स वहां बिछाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा स्थान ले लेने के बाद भी वो स्थान ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए संख्या 35,000 के लगभग वहां रखी गई है। उसके अलावा 650 जिलों में अपनी व्यवस्था से आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने एनजीओज लगाए हैं और वो हर जिले में जा रहे हैं। देश में कुल 676 जिले हैं, लेकिन 650 जिलों को आयुष छू रहा है और अपने माध्यम से वहां कार्यक्रम करवा रहा है। बाकी जो मैंने कहा कि जो अन्य मंत्रालय हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपने स्तर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये कार्यक्रम केवल सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा, ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमारा पैमाना उसके आगे बहुत छोटा लगता है, जो योग गुरु और योग संस्थान जिसको कर रहे हैं, मतलब अचंभित करने वाले आंकड़े हैं। बाबा रामदेव अपने तौर पर 1100 कार्यक्रम विदेश में कर रहे हैं, अकेले इंग्लैंड में, यूके में 400 कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन्होंने यहां हर गांव तक पहुंचने के लिए 1 लाख कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है।
10 करोड़ लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। श्री रविशंकर के यहां से जानकारी आई कि 5 करोड़ लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो नंबर अपने आप में, जिसे कहते हैं माइंड बॉगलिंग नंबर, ऐसा नंबर है। जग्गी वासुदेव जी के कार्यक्रम बाहर भी और तमिलनाडु में भी, देश में भी। तो ये इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है कि जिस कार्यक्रम की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और उत्साह जो लोगों में दिख रहा है वो अपने आप में अपार है। मगर यहाँ एक चीज मैं बहुत खास तौर पे कहना चाहूंगी, इन कार्यक्रमों में भागीदारी की कोई बाध्यता नहीं है। ये स्वयं इच्छा से, स्वेच्छा से लोग इसमें आए और पार्टिसिपेट करें, ये हमारा इसमें मूल उद्देश्य है। किसी को भी मजबूरी से हम ना लाएं, किसी को भी कंपलसरी करके हम ना लाएं। सब दूर ये संदेश दे दिया गया है कि लोग अपने आप आए, स्वेच्छा से आए, और जो स्वेच्छा से आएगा वही भागीदार बन सकेगा। किसी को भी मजबूरी से हम नहीं ला रहे हैं। तीसरी बात, ये योग संस्थान और सरकार ये तो बिल्कुल आयोजित करके कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जो पार्कों में लोग अपनी अपनी योजना बना रहे हैं, जनता अपनी योजना बना रही है, उस उत्साह को देख करके तो अचंभा होता है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही हमारे यहाँ आयुष ने तय किया है कि एक डाक टिकट और 2 सिक्के, एक सिक्का 100 रुपए का और एक सिक्का 10 रुपए का। 100 रुपए का सिक्का कमेमोरेटिव होगा और 10 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में आएगा। इसी तरह से एक डाक टिकट, पोस्टल डिपार्टमेंट डाक टिकट निकाल रहा है और आरबीआई सिक्के बना रहा है। इसके साथ साथ हमने इसमें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी करवाया है। भारत में अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और सुशील कुमार अभी तक इंडोर्समेंट कर चुके हैं, और बाहर भी हमारे मिशंस ने वहां की जो सेलिब्रिटीज हैं उन देशों की, उनसे इंडोर्समेंट कराया है। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन आपको आयुष का भी मिलेगा और एक प्रेजेंटेशन आपको एमईए का भी मिलेगा, उसमें उन सेलिब्रिटीज को भी आप लोग देख पाएंगे। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है कि भारत ने जो पहल की थी उसके पीछे एक उद्देश्य था कि हिंसा से ग्रस्त विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक नारा है कि पूरी वसुधा एक परिवार के तौर पर है, उसे योग के माध्यम से जोड़ा जाए। योग इंडिया का बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर के माध्यम से विश्व एक साथ आए और हिंसा की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो योग के माध्यम से खत्म हो। मुझे ये लगता है कि 21 जून को जो शुरुआत होगी वो हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति की शुरुआत होगी, और उसके बाद वाकई हम विश्व को शांति के रास्ते पर ले जा सकेंगे। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। मेरे सहयोगी आयुष के मंत्री कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो इसमें जोड़ सकते हैं। फिर एक बार मैं सबका स्वागत करता हूं। माननीय सुषमा जी ने देश और विदेश के बारे में आपके सामने विषय रखा है। ये कार्यक्रम हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। सब जगह से हमें साथ मिल रहे, सबकी योग गुरु हो, एनजीओज हो, योगा आश्रम हो, सबसे हमें मिल रही है। और ये इसका प्रमुख कार्यक्रम जो जैसा दिल्ली में बोला है, इसकी व्यवस्था भी यहाँ पूरी तरह हो रही है और एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम दिल्ली में हो जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद रहेंगे और जो योग करने के लिए जो आएंगे उसको संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। कम से कम 35,000 से ज्यादा उपस्थिति यहाँ होगी। बाकी सभी जो कुछ काम है सो सभी तैयारियां पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि जैसा इसको हमने गिनीज बुक में रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये भी एक रिकॉर्ड इस कार्यक्रम से द्वारा हो जाएगा। आप सबका सहयोग, आप लोग कई दिनों से सहयोग दे रहे हैं। इसका प्रचार, इसका प्रसार आप लोगों से माध्यम से हो रहा है। इसके आगे भी जब तक वो कार्यक्रम हो, इसके बाद भी अपना सहयोग हमें मिलता रहेगा। इन्हीं आशा के साथ मैं फिर एक बार आपको सबको धन्यवाद देता हूं। I thank the two ministers for their statements. Please, we will now have two presentations. The action plan by Ayush
and the action plan by the Ministry of External Affairs. We will begin with the action plan by Ayush. Honorable External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj ji, Honorable Minister of State Independent Charge, Ministry of Ayush, Shri Shripad Nayak ji, very respected Dr. H.R. Nagendra ji, Secretary Ayush, Shri Sanyal ji, respected secretaries from Ministry of External Affairs, representatives of various yoga institutions, and very dear friends from media and press. It is my great honor and privilege to present before you a very brief presentation of action plan on the International Day of Yoga. As Honorable Minister External Affairs has just mentioned that the mandate of celebrating International Day of Yoga has been assigned to the Ministry of Ayush, being the nodal ministry in the Government of India. So as we all know that this UN declared 21st June as International Day of Yoga on 11th December 2014. So this is brief of our action plan. There will be a mass yoga demonstration program at Rajpath. Then there will be 2 days international conference also at Vigyan Bhavan, which will begin at 11 a.m. on 21st June and will continue till the evening of 22nd. And there will be release of commemorative coins, postal stamps, and also through our Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, we have roped in NGOs in 650 districts of the country who have already begun training of general public and also Nehru Yuvak Kendra members in respective districts from 21st May, and this 1 month training will continue till the 21st June, and on that day they will also participate in that early morning program from 7 to 7:35 a.m., which will also be followed by a seminar or some small functions. And we have also requested all the state governments to organize similar events, and we are getting very good support from many of the states. And we have planned a very focused communication strategy in consultation with the Ministry of INB. Also, the ministry through ICCR has supported private yoga trainers to support Indian missions abroad. Now, coming to this mass yoga demonstration at Rajpath, as has already been indicated by honorable ministers, that this will be basically, we have developed a common yoga protocol of 35 minutes in a very detailed consultation with all the important yoga schools of the country. All yoga gurus, teachers, respected teachers have been consulted by our Morarji Desai National Institute of Yoga, which is one of the institutes under the Ministry of Ayush. So they have developed this common protocol, and this was finally vetted and approved by a committee of yoga experts, which is headed by Dr. Nagendra, who is Chancellor of S. Vyasa University. And this will basically be this 35 minutes yoga protocol will be performed by everyone in the country, as well as we have shared this DVDs and booklet with the Ministry of External Affairs, which they have transmitted to various missions, where it will be practiced in various missions, as mentioned by Honorable Minister. The entire program at Rajpath would be live telecast, and it will be webcast through NIC and Doordarshan. And this 35,000 people, the participants would be from NCC, Delhi schools, yoga institutions. Mostly from among yoga institutions, there is Baba Ramdev's Patanjali Yoga Peeth, Shri Shri Ravi Shankar's Art of Living, Isha Foundation, Gayatri Parivar, our own Morarji Desai National Institute of Yoga, an international naturopathy organization. And of course, we are inviting all officers from various
ministry departments, commissions, and also our uniformed forces. And we have also applied formally with the Guinness World Records for a category that is called largest yoga demonstration class at a single venue. And of course it requires a great deal of accuracy, their adjudication, their validation of participation, etc. That detailed exercise will be undertaken through one of we have appointed the Ernst & Young as a consultant, so they will be helping us for validation of all the participants. As I mentioned, that states have also been requested to organize the similar events. This is the graphic presentation, a graphic view of the venue. We will be installing almost 34 DVDs all along the stretch of Rajpath from Rafi Mark crossing up to Sea Hexagon. The total distance is about 1,400 meters. And there will be, the whole area will be carpeted and 37,000 mats will be provided. And also, as I mentioned, there will be an international conference on yoga for holistic health on 21st and 22nd June at Vigyan Bhavan. And in addition to inaugural and valedictory sessions, there will be 7 technical sessions which have been finalized again by the expert committee. The themes include traditional basis of yoga, yoga in disease prevention and health promotion, therapeutic potential of yoga, yoga for global peace, yoga and its applications, living traditions of yoga. And of course, this session 5 and 6 will be held in parallel halls concurrently, and then there will be panel discussion, yoga for holistic health. And we have already identified international and national speakers, and we are getting very good response. Already 26 countries, we have received confirmation from 42 participants from 26 countries. And there will be a cultural evening, there will be a show of yoga dance, and that will be performed by one Yoga University students as well as the Sangeet Natak Academy. And this also, today's program will be live webcast, and of course the inaugural function will be live telecast. The strategies we have adopted for our this program, as I mentioned, that this instructional DVD booklets, we have distributed all the ministries, departments, states, governments, and of course UT governments, all yoga institutions. Thousands of booklets, DVDs, both in English, Hindi, we have distributed. Whoever is interested, we have, whichever organization has approached us, we have given them, so that they can, some of them, of course, they will be participating at Rajpath, but many of them, they will also be doing the same thing at their respective premises, at their respective institutions. Then we have, as I mentioned, we have shared this DVD with the MEA for use in various missions abroad. And our MDNIY, that is Morarji Desai National Institute of Yoga, is providing technical assistance, support in terms of providing coaches, trainers to NCC, to the Department of Personal Training, who are organizing these training courses for all the central government employees in various Graha Kalyan Kendras. And also we have, I mentioned earlier, that 650 NGOs, 650 districts are covered by NGOs. Primarily NGOs, of course, there are very few government organizations also, and we are providing them a financial assistance of rupees 1 lakh each, so that they could train people for 1 month and they can participate in our main program on 21st June. And media and publicity, we have drawn up a very elaborate plan, both electronic media, print media, and the entire media activities, not only by Ministry of Ayush, but also Ministry of Tourism, Ministry of HRD, that has been vetted by the expert committee, so that the real essence of yoga is transmitted to not only within India, but also abroad. Even the film made by MEA, that was also previewed by, vetted by this committee, headed by Dr. Nagendra. We have also approved one logo, which was released on 29th of March.
And we have documentary films have been made by MEA as well as Ayush also, that will be displayed on 21st June, of that particular Ayush film. And we have put our these booklets, DVDs on our National Health Portal. There is a link on International Day of Yoga. Then there is a discussion forum on mygov.in. And these events will be, as I mentioned, will be aired in by webcast. And then user ID will be provided by NHP to districts so that they can also upload whatever activities they are undertaking in their respective districts. And on celebrity endorsement, as has already been mentioned, that Amitabh Bachchan ji, Virat Kohli ji, Sushil Kumar ji, they have already given their clips, and which will be aired, I think, which has already started, or it will start maybe today or tomorrow. Then there will be jingles to be run on DD and AIR. Then there are other collaborating ministries for the entire event. The Ministry of Defence, there are more than 11 lakh NCC cadets. They would be performing this common yoga protocol throughout the country. Their training is already going on for the last about a month. And 5,000 of their cadets would also be part of our Rajpath contingent. The Ministry of Home Affairs, their 9 lakh the force, they would be performing in their respective field formations, and they are also contributing a contingent of 5,000 from various like IDPB, CISF, BSF, CRPF. They are contributing 5,000 personnel for our Rajpath event. Then Ministry of Human Resource Development, they are observing this International Day of Yoga in all the educational institutions. They have requested all their schools, colleges, universities to observe this very important occasion. But as Honorable Minister of External Affairs mentioned, that it is purely on voluntary basis. And there will be 5,000 school children from Delhi. That also is being coordinated by the Ministry of HRD, from CBSE, from Kendriya Vidyalayas, from the Government of Delhi schools. The Ministry of Youth Affairs also is helping us a lot, particularly in mobilizing foreign participants. And apart from that, the members of Nehru Yuvak Kendra Sangathan, Mahila Mandals, they will be participating in their respective districts. And they are also undergoing training organized by our NGO and districts, as I mentioned earlier. Ministry of Culture also is celebrating in a big way. They are organizing exhibition on yoga through Sangeet Natak Academy. There will be zonal culture centers would be celebrating the event. Then also to commemorate Patanjali's memory and work, and interpretation center at Varanasi they are proposing to establish. And the Ministry of Tourism, they are also coming out with their brochures, booklets, magazines, projecting India as a yoga destination for the entire world. So that their publicity material has also been vetted by Dr. Nagendra's committee. Thank you very much. Apart from my usual responsibilities, I'm also the MEA's Chief Coordinator for the International Day of Yoga. So in that capacity now I'll be presenting to you the MEA Action Plan for International Day of Yoga by our missions abroad. As Honorable Minister had mentioned, when India's resolution declaring the International Day of Yoga on June 21 was passed, it was co-sponsored by a record 177 countries, and all 193 member countries supported it. This shows you the breakup of the various regions of the world which co-sponsored the Indian resolution. We have been working in coordination with all our missions and posts abroad, covering all 193 countries. As a result of our efforts, we have been able to succeed in organizing International Day of Yoga events in 192 countries. The only country left, as the Minister mentioned, is Yemen because of the war situation there.
We have also deputed a large number of yoga instructors to our missions to assist them in carrying out the International Day of Yoga activities. And following the External Affairs Ministers meeting with the major yoga organizations having international footprint, they are assisting our missions in a big way. So that's why, as the Minister mentioned, we are deputing only 30 or 31 yoga instructors. The balance is being met from these yoga organizations. In terms of publicity, more than 7,000 copies of 10 coffee table books and more than 19,000 copies of 57 reference books exclusively on yoga have been sent to our missions and posts abroad. 1,000 copies of the Common Yoga Protocol booklet have been dispatched to the missions, along with the instructional DVD, which is being dubbed in 8 languages. Signe d'un équilibre parfait entre l'âme et le corps, French, entre l'homme et la nature. Давайте начнем садхану с чалана крии, расслабляющего упражнения для улучшения капиллярного кровообращения. Right and left twist. English. Exhale. Gently turn the head to the right side so that the chin is in line with the shoulder. أن اليوغا هي فن وعلم في وقت واحد ويهدف إلى تحقيق صحة أفضل للإنسان. كلمة Separamos los pies holgadamente. Spanish. Lentamente, subimos los brazos hacia los lados hasta que estén horizontales. 时针转动头部， Chinese. 头部向下转时呼气，逆时针转动头部。 Apart from these 6 UN languages, we are also having the film dubbed in Japanese and in German. We have prepared 4 documentaries: Harmony with Nature by Raja Chaudhary, Yoga Aligning to the Source by Raja Chaudhary, Yoga An Ancient Vision of Life by Binoy K. Behel, and History of Yoga by Deepika Kothari and Ramji Om, which have been made available to our missions. 3 folders of photographic exhibitions on yoga have also been provided to our missions for use royalty-free. They have been sourced from the Morarji Desai National Institute of Yoga, from Mr. Raja Chaudhary and Mr. Binoy K. Behel. A dedicated International Day of Yoga page on the MEA website is going to be launched, and the launch will happen immediately after this presentation by the 2 ministers. A large number of preparatory events have been held in various countries as curtain raisers for the International Day of Yoga main event on the 21st of June. There was yoga in the European Parliament and yoga at UNESCO in collaboration with Sri Sri Ravi Shankar. There have been meetings with yoga clubs and community organizations, yoga classes and yoga concerts. There have been press conferences announcing events, week-long celebrations in the run-up to the festival in Trinidad and Tobago. You see the picture there from Australia, and daily updates and tips on social media. As you can see, the lion posture has been advertised by our mission in Maldives. On the 21st of June, there will be yoga classes and demonstrations based on the Common Yoga Protocol. Articles will appear in prominent media outlets. There will be release of stamps in 3 countries at least: Brazil, Hungary and Mauritius. There will be yoga workshops and fairs, photographic exhibitions and film shows, essay competitions, and distribution of DVDs and books. Just to give you a flavor of what our missions have been doing, we are just going to show you a sampling of the posters prepared by some of our missions. So this is, as you can see, from Serbia, all the way to Indonesia. Then you have from San Francisco, which is where the thing will be led by Jay Uttal, a Grammy-nominated artist, to Ho Chi Minh City, from South Africa, all the way to Iceland. From the Gulf countries, where you see posters, now this is a poster from Dubai, all the way to China. Central Asia, this is the poster from Yerevan. And Europe, you see the posters from Lisbon and Monaco. So, all in all, there will be 191 countries covered. India is the 192nd, only Yemen is missing. And there will be a total of 251 cities covered in 6 continents. So from North America, there will be 15 cities. From South America, there will be 20. From Europe, there will be 63. From Asia, there will be 75. From Australasia and Oceania, there will be 23. And 55 from Africa. Just to give you the scale at which we are organizing International Day of Yoga events, this gives you a listing of some of the large-scale events which our missions have prepared.
Yangon is going to have more than 12,000 people. Buenos Aires also in excess of 10,000. Warsaw 10,000. Even Singapore will have 5,000. Oslo will have 3,000. Beijing will have 3,000. Berlin will have 2,000. Bogota will have 1,500. Not only are the events being held in the capital cities, but in several countries, there will be yoga events across the country. So these are some of the countries where there will be multiple city venues: USA, China, Australia, Canada, Germany, UK, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Switzerland, UAE, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Russia, Nepal, South Africa, Japan, Italy, Myanmar, and Saudi Arabia. Minister mentioned the celebrity participation. From Algiers, we have the Algerian Minister of Sports and Youth Affairs. Ho Chi Minh City, we have a famous singer, Nguyen Phi Hung. In Bangkok, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister himself will be leading the IDY events. In Copenhagen, we'll have the Minister for Children and Gender Equality, Manu Sareen. In Maldives, Foreign Minister Dunia Maimoon will be there, as also famous actor Ali Cizan. In San Francisco, Jao Uttal, the Grammy nominee. In Sao Paulo, Monja Cohen, a famous Brazilian Zen monk. In Sydney, it will be Brett Lee. And Vancouver, we expect Bollywood stars Kapil Sharma and Mika. Here you have Paras Khatka, the captain of the national cricket team of Nepal, endorsing yoga. And in Malta, we have lined up Moria Delia, famous actress and singer. Finally, Prince Raim Al Ali will be the patron of the yoga celebrations in Jordan. The biggest flagship event of them all will be at the United Nations, because that's where it all began. The Honorable External Affairs Minister herself will be presiding over that ceremony in the presence of Sri Sri Ravi Shankar, who will lead the yoga practice. And we already have confirmations from UN Secretary General Ban Ki-moon and President of the 69th UN General Assembly, Sam Kutesa. The event will be broadcast live at Times Square. Thank you. We will now have the launch of the International Day of Yoga website. So this, as you can see, is going to be our cover page, which will also have details on the International Day of Yoga celebrations abroad. All these dots that you see are actually representing International Day of Yoga events. So you click on any one of the dots. Let's click, for instance, this little dot here, tiny dot, Cook Islands. There you are. What is the event on June 21, at what time? See, in two locations in Cook Islands, you have the details of the events which are going to happen. Let's click on a couple of others. Okay. Let's see. Okay. Let's see Australia. There you are. In Melbourne, what's going to happen? In Perth, what's going to happen? Where is it going to happen? Who's the person to contact? In Sydney. In Russia, Moscow, Vladivostok, St. Petersburg. So this way you can just click, it's an interactive map, you can just click on any city and you will get instant details of where the events are being held, what we are doing there, who's the person to contact if you want to participate. So with that, we come to the end of the first part of this press conference. Now we'll be happy to take questions. As the Minister has mentioned, please note, this press conference is exclusively for the International Day of Yoga, so please confine your questions only to yoga-related events. Please do not stray into other areas. Okay, the first question goes there. Please identify yourself and the organization that you represent. जी, मेरा नाम देवेंद्र पराशर है, इंडिया टीवी से। जी। योगा का संदेश आप लोग दे रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन रॉबर्ट
नोएडा का ये कहना है कि जिस हिसाब से संदेश दिया जा रहा है, देश की जो आबादी है वो उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि डराने धमकाने के अंदाज में योगा का संदेश दिया जा रहा है। किस चीज को आप डराने धमकाने का कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि हम तो पार्टिसिपेशन के लिए भी पाबंदी नहीं लगा रहे, उसमें भी बाध्यता नहीं डाल रहे। अगर हम भागीदारी को भी वॉलंटरी और स्वेच्छा से कर रहे हैं तो डराना धमकाना कहां से आ गया? सुषमा जी, मधुरेंद्र में न्यूज नेशन से दो बयान हैं, उनके संदर्भ में आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो आपके अपने सांसद आदित्यनाथ का, जिसका भावार्थ यह है कि जो योगा नहीं करना चाहता वो एक तरह से जल समाधि ले ले, और दूसरा बयान बाबा रामदेव का आया है कि जो नमाज की क्रिया होती है दरअसल वो भी योगा की क्रिया है। दोनों पर आपका क्या कहना है? जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के बयान का सवाल है, मैं उससे पूरी तरह असहमत हूं। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, वो अपनी ओर से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि योग किसी धर्म विशेष से ही संबंधित नहीं है। जिस तरह की क्रियाएं योग में होती हैं उसी तरह की क्रियाएं नमाज अता करते हुए भी होती हैं। ओके, आसिफ साहब। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये योगा पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है जी, और आपने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है उसमें उर्दू भी एक भाषा है जी, और दूसरी बात है कि जो मदरसे हिंदुस्तान के हैं, क्या हमारी आपकी सरकार ने या आपके डिपार्टमेंट ने उनसे भी कांटेक्ट किया है कि योगा में पार्टिसिपेट करें? जी, जहां तक बाहर की भाषाओं का सवाल है, वहां उर्दू से मिलती अरेबिक है, इसलिए हम लोगों ने अरेबिक में किया है। आपने यहाँ देखा भी होगा जो 6 भाषाएं यूएन की भाषाएं उनमें अरेबिक भी है, तो अरेबिक में हमने किया है। और जहां तक मदरसों का सवाल है, हमने सबको कहा है, किसी को छोड़ा नहीं है, उसमें मदरसे छूटे नहीं, हमने सबको कहा है, लेकिन ये कहा है कि आप अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करिए। सुषमा जी, योगेश भारद्वाज, जन जन जागरण भोपाल से। इस साइड, दिस साइड, इस साइड। हाँ, बोलिए। मैम, मेरे सवाल है कि इस प्रस्ताव पर जो यूएन में रखा गया भारत की ओर से, क्या पाकिस्तान का नाम उस प्रस्ताव में समर्थन के लिए शामिल है? और दूसरा, क्या मध्य प्रदेश सरकार में जो सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद था, तो मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और योगा के लिए वहां की सरकार की 21 जून को क्या योजना है? जी, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैंने कहा ना कि विरोध किसी का नहीं था। को स्पॉन्सर 177 थे, लेकिन विरोध किसी का नहीं था, इसीलिए सर्वसम्मति से पारित हुआ। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश ने अपनी पूरी जो योजना बनाई है वो राज्य सरकार के तहत भी बनाई है और अलग अलग योग संस्थानों ने भी बनाई है। जो एक कॉमन प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र दोनों प्रेजेंटेशंस में आया, मैं उसके बारे में बता दूं आपको कि डॉक्टर नागेंद्र की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनी थी। उस 5 सदस्यीय समिति ने लगभग सभी प्रमुख योग संस्थानों से और सभी प्रमुख योग गुरुओं से बात करके एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया। लेकिन वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल विदेश में भेजे जाने वाले मिशनों के लिए और शासकीय कार्यक्रमों के लिए है। बाकी योग संस्थान या बाकी संस्थाएं वो कुछ भी कर सकती हैं, वो सूर्य नमस्कार भी पहले भी कर सकती हैं, बाद में भी कर सकती हैं। लेकिन जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल बना था, जिसमें इन्होंने सबकी सलाह से बनाया, उसमें सूर्य नमस्कार को शामिल इसलिए नहीं किया गया था कि ये केवल बहुत सरल आसन उसमें चाहते थे और पूर्ण रूप से सुरक्षित आसन चाहते थे जो कोई भी बीमारी वाला कर सके। स्पॉन्डिलाइटिस या बैक एक वाला कई आसन सूर्य नमस्कार के उसके लिए वर्जित हैं और सूर्य नमस्कार अपने आप में 12 आसनों का मिश्रण है। तो टोटल इन्होंने 15 आसन ही उसमें रखे थे। तो सबकी सहमति से केवल उस प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार अलग रखा गया, लेकिन सूर्य नमस्कार करने पर पाबंदी नहीं है। जितने योग संस्थान अपने तरफ से कार्यक्रम करेंगे उसमें वो सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो करेंगे। कौशिक जी, माइक इधर। सुषमा जी, जैसा आपने बताया कि 44 मुस्लिम देशों तक ने इसका समर्थन किया, लेकिन 47 में, लेकिन हमारे अपने देश में कई कट्टरपंथी ताकतों ने कहा कि योगा गैर इस्लामिक है, सूर्य नमस्कार इस्लाम के विरुद्ध है। इस मानसिकता से क्या आपको लगता है कि योग दिवस को राजनीति में घसीटने का प्रयास हो रहा है? कि मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही बता दिया कि शायद वो जानकारी के अभाव में ऐसी बात कह रहे हैं। अगर उन्हें ये मालूम होता कि 47 मुस्लिम देशों ने, वो भी वो देश जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने को स्पॉन्सरशिप दी है, वो केवल समर्थन नहीं दिया, वो इसके सह प्रायोजक बने हैं,
तो शायद वो ये बात कभी नहीं कहते। ये जानकारी के अभाव में कही गई बात है। मैं अंजरुल्लाह मुंसिफ टीवी से हूं। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि रमजान की वजह से बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में जो है शाम में जी रोजा इफ्तार के बाद, हिंदुस्तान में इसका क्या प्रोग्राम है? चूंकि बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ पर है जो 19 तारीख से रोजा रखेंगे। जो रोजा इफ्तार के बाद करना चाहता है वो कर सकता है, किसी पर ये पाबंदी नहीं है कि वो सुबह ही 8 बजे करे। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा इफ्तार के बाद कर सकते हैं तो खुली छूट है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 8 बजे केवल शासकीय कार्यक्रम के लिए है, 7 बजे से 8 बजे तक का केवल शासकीय कार्यक्रम के लिए। बाकी संस्थान कब कब करना चाहते हैं, पार्क में लोग कब करना चाहते हैं, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो रोजा इफ्तार के बाद अगर मुस्लिम समुदाय के लोग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सुषमा जी, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर से। मैडम, ये जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है, शायद भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो पूरा विश्व एक साथ और एक दिन और एक समय पर मना रहा है। उसके लिए भारत सरकार को बधाई, या आगे जिस तरह कार्यक्रम। मैडम, क्या योगा को आप ये समझते हैं कि एक विषय होना चाहिए और बच्चों को रेगुलर योगा की क्लासेस भी लगनी चाहिए उनके स्वास्थ्य के लिए और अन्य चीजों के लिए? क्या ऐसा समझते हैं कि इस योगा डे के बाद फिर आप कुछ ऐसा कोर्स वगैरह शुरू करें जिसको HRD मिनिस्ट्री एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए? जी हाँ, 21 जून तो शुरुआत है और इस दिन जब लोगों को आनंद आएगा इसको करने में तो वो अपनाना भी चाहेंगे। लेकिन हम किसी भी पाठ्यक्रम पर बाध्यता नहीं डालेंगे। पाठ्यक्रम जरूर शुरू हो ताकि बच्चे उसको सीखें, पहले दिन से ही उनको प्रशिक्षण हो, वो दोनों चीजें आए उनमें, उनको उनका स्वास्थ्य भी बच करके रहे, अच्छा रहे, उनके अंदर एक आंतरिक शांति की भावना भी आए। सबसे बड़ा काम जो योग करता है वो तनाव हटाता है। और आज सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी चीज से ग्रस्त हैं तो तनाव से। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ और स्ट्रेस बस्टर है योगा। लेकिन उन पाठ्यक्रमों में भी ये आप लोगों को ऑप्शन होगा कि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। हम किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं। सुषमा जी, ये मैं सचिन बुधौलिया यूनिवार्ता से, इधर इस तरफ। मेरा सवाल ये है कि आप इतना बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार के बाकी विभागों के मंत्री हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दिया इसमें। नहीं, सभी के सभी मंत्री इसमें भाग लेंगे और ज्यादातर मंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे। बाकी कुछ मंत्रियों को अलग अलग जगह रहने को भी कहा है, लेकिन ज्यादातर मंत्री और सांसद अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। सभी मंत्री भाग लेंगे। सुषमा जी, विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन से। जी, आपने जैसे जिक्र किया कि 47 जो देश हैं OIC के मेंबर वो को स्पॉन्सर है, लेकिन हिंदुस्तान में इस पर विवाद हो रहा है, तो क्या इसकी वजह ये माना जाए कि जो भारत सरकार है वो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको ये समझाने में नाकाम रही है, या फिर इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है उससे जो भी चीज होती है उसे लगता है कि एंटी माइनॉरिटी एक्शन प्लान है? ये तो आपके मन का भाव होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ये समझता है कि बीजेपी के द्वारा की गई हर चीज एंटी माइनॉरिटी होती है। जहां तक समझाने की बात है, मैंने स्वयं कहा कि जानकारी का अभाव लोगों से ये बात कहलवा रहा है। अगर उन्हें ये पता चले कि 47 मुस्लिम बहुल देशों में, और अभी जो प्रेजेंटेशन आपने देखी जिसमें वो देश दिखाए गए जहां कई कई शहरों में हो रहा, क्योंकि 192 देशों में हो रहा है मगर 250 शहरों में हो रहा है। उसमें कितने बड़े मुस्लिम देश शामिल है? UAE है उसमें, सऊदी अरब है उसमें, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। ये सब मुस्लिम देश हैं जहां एक जगह कार्यक्रम नहीं हो रहा, कई कई जगह कार्यक्रम हो रहा है। मेरा सवाल श्रीपद नायक साहब से है। जैसा कि सुषमा स्वराज जी ने कहा कि जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें सामने आ रही है और सरकार की मंशा ये नहीं है। श्रीपद नायक साहब, आपके हवाले से एक बयान आया है कि नमाज के दौरान 9 ऐसी योगा की विधियां होती है जो की जाती है। क्या वो 9 विधियां आपके हवाले से सही ये बयान है? हाँ जी, मैं फिर भी इसी बयान पे हूँ, क्योंकि जब नमाज के वक्त में मैंने रिक्वेस्ट किया, उन समाज को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा ये सब जगह योगा ये यूनिवर्सल है, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी पार्टी का नहीं है, और जो सब लोग इसका इस्तेमाल अपने अपनी प्रेयर में सब जगह कर रहे हैं। और मुझे जो कुछ इंफॉर्मेशन मिला, इससे मुझे ये मिला कि ये 8-9 विधियां जो नमाज पढ़ते उस वक्त उसमें है, कभी भी आप चेक कर सकते हैं।
Akhilesh Suman. जी हाँ जी सुषमा जी, आज से निकाल. have you been practicing it before or you will start from 21st June? No, I have been practicing it before. Thank you. सुषमा जी, अखिलेश मैंने स्वयं बाबा रामदेव से सीखा, किसी और से भी नहीं. मैं तो 30-31 साल से कर रहा हूँ. सुषमा जी, अखिलेश सुमन राज्यसभा टीवी से बोल रहा हूँ. जमाना पेटेंट का है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे योगा करवाया जा रहा है. हम क्या आशा करें कि भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है, इस पूरी प्रक्रिया से, पूरे इससे? देखिए, जहां तक भारत के ऋषि मुनियों का सवाल है, उन्होंने जो भी अपने तरफ से सोचा और किया वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया मानवता की भलाई के लिए. हमने कभी इस तरह की चीजों पर बौद्धिक संपदा का ठप्पा नहीं लगाया, ना उसके लिए कभी केस फाइल किए. हमारे यहाँ तो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने पब्लिक डोमेन में पहले से वो चीजें डाल दी जो मानवता के कल्याण के लिए. तो हमारी तरफ से योग मानव कल्याण के लिए, उसके ऊपर कभी भारत आईपीआर का ठप्पा नहीं लगवाना चाहेगा. I'm Geeta Pandey from BBC. Yes. I want to ask, how much is the event estimated to cost? Do we have a budget for it? देखिए, जहां तक विदेश का सवाल है, हमारे यहाँ हर मिशन के पास अपना एक पब्लिसिटी बजट होता है. और ये चूंकि इंडिया सॉफ्ट पावर कैंपेन है, हम अपने सॉफ्ट पावर को आगे ले जा रहे हैं, तो वो अपने अपने बजट से इसको करेंगे. जहां तक देश के स्तर का सवाल है, मुझे लगता है अभी कोई आंकड़ा तय नहीं किया है, क्योंकि कार्यक्रम. सुषमा जी, इंडिया न्यूज से संजय शर्मा. मैडम, राहुल गांधी ने कहा है कि देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को योगा करवा रहे हैं. विश्व की समस्या का ध्यान योग के कारण से वो ठीक कर रहे हैं. वो भारत की बात करते हैं. भारत में भी जिस तरह की हिंसा, आतंक, ये सब फैल रहा है, सबसे बड़ी चीज है ना ये. तो योग उसका समाधान है, और वो केवल भारत को समाधान नहीं दे रहा, वो विश्व को समाधान दे रहा है. Madam, Yes. Doreen Fiedler, German press agency DPA. Yes. In the Western world, yoga is often practiced as a pure fitness exercise. It's not a holistic life approach. Does this hurt you sometimes? And is anything done against that? Not against that. अगर योगा कोई हेल्थ के तौर पर करना चाहता है तो हेल्थ के तौर पर करे. अगर होलिस्टिक हेल्थ एक्सरसाइज के नाम से करना चाहता है तो उससे करे. हर किसी को अलग अलग ढंग से इसका लाभ मिलता है. तो होलिस्टिक हेल्थ एक्सरसाइज के तौर पर भी अगर कोई विश्व का देश योग करता है तो करे. सुषमा जी, मैं शोभना जैन हूँ. मेरा सवाल है कि जो विदेशों में हमारे दूतावास निमंत्रण भेज रहे हैं, क्या हेड ऑफ स्टेट्स को भी भेजे गए हैं? जी हाँ. कितने हेड ऑफ स्टेट्स ने मंजूरी दी है, कुछ नाम बताएंगी? कुछ नाम यहाँ आपने भी प्रेजेंटेशन में देखे. कहीं हेड ऑफ, जैसे हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी दिए हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी गए हैं. कुछ की मंजूरी आई है, कुछ की नहीं आई है अभी हेड्स ऑफ स्टेट्स को, लेकिन निमंत्रण सबको गए. Ma'am, Tuheen from PTI. Yes. There are reports that Pakistan has rejected the visa of some of the instructors that were sent here. Do you like to comment on that? कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वीजा मना कर दिया, हमने इंटरनल अरेंजमेंट कर लिया. लेकिन योगा तो होगा वहां. हम केवल इसी इंस्ट्रक्टर के भरोसे नहीं कर रहे थे ना कार्यक्रम. उन्होंने वीजा मना कर दिया, हमने अंदर से अरेंजमेंट कर लिया. नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ, दैनिक भास्कर से. आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ. एक तो योगा जो है उसका कारोबार पूरी दुनिया में कितना है, उसका कोई आकलन आपने किया होगा? इसमें कहा जाता है कि करीब 35% जो है वो चाइनीज लोगों के पास है इसकी हिस्सेदारी. तो इस योगा दिवस के बाद इस बिजनेस पर इंडिया के योग गुरु जो हैं वो कितना उनका अधिकार हो पाएगा, या भारत की हिस्सेदारी कितनी हो पाएगी? देखिए, पहले तो मुझे कारोबार और बिजनेस इस विषय पर आपत्ति है. योगा हमारे लिए कोई कारोबार नहीं है, और ना योगा योग गुरुओं के लिए कोई बिजनेस है. योगा हमारे लिए मिशन है. योगा एक डेडिकेशन है. योगा एक समर्पण है. और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने योगा को मानव कल्याण के लिए दिया है, तो इसलिए हम कभी इसको बिजनेस में नहीं आंकते और इसको कारोबार में नहीं आंकते कि चाइना ज्यादा पैसा कमा रहा है कि कोई और दूसरा कमा रहा. हम तो मानव कल्याण के लिए योग कराते हैं. उधर अभी पहले इधर जरा पूछिए.
Madam Pradeep Kumar, my Samachar Post News English daily show. One thing is not clear to me. All the exercise you are doing, all these things, for the betterment of the Indians or is the betterment of the global? I fail to understand who is follow of your instructions, who is interested to all these things in continuously. जहां तक ये प्रोटोकॉल बनाने की बात है, वो इंडिया के इंडियन योग के आधार पर बनाया गया है और कहीं के योग के आधार पर नहीं बनाया गया, क्योंकि पतंजलि ही योग के गुरु हैं और ये जो योग की भारतीय धरोहर है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको बनाया है. हु इज इंटरेस्टेड मीन्स पूरे लोगों के लिए, ये तो जन कल्याण की चीज है और इसलिए पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए हम लोगों ने बनाया. हाँ. Sridhar from the Asian Age here, ma'am. This side. My question is, you just mentioned that the government had made some internal arrangements for the Yoga Day, to celebrate the Yoga Day in Pakistan. Could you just be a bit more specific and give us some details? What are the Yoga Day arrangements in Islamabad and other places in Pakistan? And will it be just the Indian High Commission there, or will it be other agencies? And have you also requested any assistance from the Pakistani authorities, and what is the reaction you got from there? हमने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि जब उन्होंने हमारे वीजा इंस्ट्रक्टर को नहीं जाने दिया तो हमें मानसिकता पता लग गई. जहां तक इंटरनल अरेंजमेंट का सवाल है, हम लोगों ने जो वहां हमारे लोग योग जानते थे उन्हीं से प्रशिक्षण करवाया और वहां एम्बेसी के प्रांगण में हम योगा करेंगे. सुषमा जी, हेलो. किस तरफ? हाँ. राजेंद्र व्यास, माणक राजस्थानी मैगजीन जोधपुर से. जी पूछिए. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि योग की सीधी भाषा में कहा जाए तो जोड़ना है, 1+1 = 2. तो क्या आप भी केवल जोड़ने का ही काम कर रही है? इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है आपका? योग किसको किससे जोड़ता है? ईश्वर से आत्मा को. हाँ, तो गीता में कहा है कि योग का मतलब है जोड़ना. जो ईश्वर से आत्मा को जोड़े, यानी अपने आप से जोड़े. जी. आत्मा सो परमात्मा है. तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब आप योग करने के बाद ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ जुड़ना शुरू होता है, और अगर आप रोज रोज करें तो मैंने प्रारंभ में कहा कि मानव को प्रकृति से जोड़ता है, जीव को ब्रह्म से जोड़ता है. और जब आप ध्यानावस्था में होते हैं तब वो जुड़ना शुरू होता है. जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वो जुड़ाव बढ़ता जाता है और एक दिन सोहम की आवाज आती है, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं. वही योग है. We have only 10 minutes left now, so please make it quick. सुषमा जी, इधर. जी. मेरा नाम राहुल मिश्रा है. मैं पूछ रहा हूँ कि 21 तारीख को क्या कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी उसमें इनवाइट किया गया है? जी, निमंत्रित किया था, लेकिन जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं शायद वो आएंगे नहीं. The lady there at the back. Please, wait for it. Scientific study, not only study but scientific study. Yeah. मैम, प्रियमवदा सहाय हूँ अमर उजाला से. जी इधर सामने बिल्कुल आपके. हाँ बोलो. मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीएम का राजपथ पे सिर्फ संबोधन होगा या वो खुद भी योगा करेंगे वहाँ? नहीं, पीएम की गरिमामयी उपस्थिति होगी, संबोधन होगा, वो खुद योगा नहीं करेंगे. मैम, प्रदीप हूँ दैनिक भास्कर से. आप कह रहे हैं 35,000 लोग होंगे जो कि योगा यहाँ राजपथ पे करेंगे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में टोटल कितना आप एस्टिमेट बना रहे हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग योगा करेंगे एक साथ? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि योग गुरुओं ने लक्ष्य बहुत बड़े बड़े रखे हैं. बाबा रामदेव कह रहे हैं वो 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और उनको करवाएंगे. श्री रविशंकर कह रहे हैं वो 5 करोड़ तक पहुंचेंगे. जग्गी वासुदेव अपना दे रहे हैं, स्वामी चिदानंद अपना दे रहे हैं. तो असली कितनों ने किया ये बाद में पता चलेगा. Srinjoy. Ma'am, times now. हाँ Srinjoy. First of all, how many? आपके बात लेते. How many instructors applied for visas, and was a reason given why the visas were rejected? Also, is this a tit for tat? Because a Pakistani diplomat, Idris Mohammed, had sought for a visa, and that has been rejected by the Indian government. देखिए, जो वीजा रिजेक्ट हुआ वो केवल एक हुआ. जो अप्लाई किया वो 30 इंस्ट्रक्टर्स जो हमने यहां से भेजे उन सब ने किया.
और कहीं का रिजेक्ट नहीं हुआ। बाकी ये टिट फॉर टैट है, ये तो पाकिस्तानी बता सकते हैं। यस माय विकास टोल्ड यू दैट आई विल बी न्यूयॉर्क along with श्री रविशंकर। जो न्यूयॉर्क में यूएन में कार्यक्रम हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, जो यूएन में कार्यक्रम हो रहा है वो हमारा प्रमुख कार्यक्रम होगा। शायद संख्या की दृष्टि से नहीं, लेकिन क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने ये किया तो उनके यूएन प्लाजा में हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैं होंगी। हाँ, सेम टाइम हमारा 8 बजे है, यहाँ 7 बजे है। हमारा जो वहां न्यूयॉर्क में है वो 8 बजे है, वहां के 8 बजे, ये यहाँ के 7 बजे। सुषमा जी, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूँ डिफेंस मॉनिटर मैगजीन से। किधर से? इधर। हाँ, बोलो। तो मैम, डिफेंस मॉनिटर मैगजीन से बोल रहा हूँ। फौज में एक चीज देखी गई है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जो फौजी तैनात हैं, तो उनका स्ट्रेस कम करने के लिए योगा का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है और उससे बहुत मदद मिली है। इवन फ्रैक्टिसाइड और सुसाइड की जो घटनाएं हुई है वो भी कम हुई हैं। लेकिन क्या ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ डिस्ट्रेसफुल एरिया में वो तैनात रहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई इस तरह की योजना होगी ताकि उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके? बिल्कुल, मैंने तो खुद ही उसको स्ट्रेस बस्टर कहा। बल्कि क्या कोई सरकारी योजना होगी इस तरह की? मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह वहां किया गया आर्मी के लिए, उसी तरह से सीआरपीएफ और इवन पुलिस के बाकी पर्सनल के लिए भी योगा कराया जाए ताकि उनका तनाव कम हो। ये हम करेंगे। लास्ट 2 questions. Okay. And 1. Okay. नमस्कार, मैं ईटीवी गुजराती से हूँ। दिस साइड मैडम, भारत में जो राज्य है, जो नॉन बीजेपी राज्य है, उससे कैसा रिस्पांस आ रहा है? जो बीजेपी के अलावा के जो राज्य है, उससे वो लोगों की क्या प्रिपेयर्डनेस है योगा इंटरनेशनल डे में? और गुजरात और सब अलग अलग राज्यों में कैसी तैयारियां हैं? ये दलों में बटा हुआ कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें कई दलों की हैं। और जहां तक अभी आयुष ने बताया 650 जिलों तक ये पहुंचे हैं, वो 650 जिले सभी राज्यों को मिलाकर हैं, तो उसमें भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित सभी राज्य शामिल हैं। तो तैयारी बहुत अच्छी है गैर भाजपा शासित राज्यों की भी। लास्ट क्वेश्चन। Ma'am, this is Sushmi De from Times of India. I just want to know, here ma'am, on your left. I just want to ask if this is the first year and you are starting, is there any plan the government to institutionalize it and take it forward in the coming years? How are you going to plan it? Are you planning to celebrate it in the similar fashion? हर बार होगा और पहले से बेहतर होगा। तो इंस्टीट्यूशनलाइज तो ये हो गया। जब आप कोई भी एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को, तो हर साल नहीं मनाते क्या? और हर साल कोशिश होती है पहले से बेहतर हो। इसी तरह से जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वो हर वर्ष मनाए जाते हैं, केवल एक वर्ष नहीं मनाया जाता, बल्कि इस बार के अनुभव से आगे बढ़कर और ज्यादा बेहतर ढंग से मनाएंगे। This concludes the press briefing. Please join us for some refreshments. थैंक यू, धन्यवाद।